Hello learners, welcome you again in SWAM course on Basics of Assessment for Learning. I am Dr. Vinod Kumar Singh, Education Department, Banaras Hindu University. Today we will interact on module number 9, Issues, Concerns and Trends in Evaluation, part 2, and lecture number 5 on current trends in assessment and evaluation, Nipun for FLN. As you know that NEP recommended so many recommendations at school level as well as higher education level, especially what is the current trends in assessment and evaluation is to be discussed here in today's lecture, focusing on Nipun for foundational literacy and numeracy. Nipun Bharat, that is the National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy, is a flagship mission launched by the Ministry of Education to ensure that every child in India attains foundational literacy and numeracy, that is called FLN, by the end of grade 3. जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संस्तुति के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने एक निपुण भारत नाम का एक मिशन प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से पूरे देश के सभी विद्यार्थियों में कक्षा 3 तक पूरा करते करते उनमें लिटरेसी और न्यूमरेसी की समझ पूर्ण तरीके से विकसित हो जाए। इसी बात को केंद्र में रखते हुए आज का पूरा व्याख्यान संपन्न किया जाएगा। It means FLN aligns with the vision of the National Education Policy NEP 2020, which identifies foundational literacy and numeracy as an urgent national priority and the most critical building block for all future learning. Accordingly, the government launched Nipun Bharat, a national mission to ensure that every child achieves foundational literacy and numeracy by the end of grade 3, that is initially targeted by 2025. Now it is extended to 2026 to 2027. निपुण भारत प्रारंभिक दौर में 2025 तक टारगेट किया गया था कि कक्षा 3 तक के सभी विद्यार्थियों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्राप्त कर ली जाएगी, लेकिन इसे एक वर्ष के लिए पुनः 2026-27 तक बढ़ा दिया गया है। आगे 2027 तक जो है पूरे देश के कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों के शिक्षण के उपरांत सभी विद्यार्थियों में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की समझ अच्छी प्रकार से विकसित हो जाएगी। Foundational literacy and numeracy refers to the ability among children to read with meaning and solve basic math problems by the end of class 3, अर्थात कक्षा 3 तक के अध्ययन के उपरांत विद्यार्थियों में भाषा संबंधित और गणित से संबंधित बेसिक जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें दक्ष हो जाएंगे। There are critical gateway skills that form the foundation for children, much as the terminology suggests, on which they build their lives. ये बच्चों में जब फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी समझ में आ जाएगी, इसके आधार पर विद्यार्थी आगे की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे और अपने जीवन में भी निश्चित रूप से सफलता हासिल कर सकते हैं। The successful acquisition of foundational
literacy and numeracy helps children learn more meaningfully as they progress to higher classes and equips them with 21st century skills like critical thinking and problem solving, which are imperative to long-term success. विद्यार्थियों की जो नींव होती है अर्थात प्रारंभिक अवस्था में ही विद्यार्थियों में भाषा की पहचान, भाषा की समझ, भाषा की उपयोगिता, साथ साथ गणित के अंकों की पहचान, गणित के अंकों के साथ विभिन्न संक्रियाओं को प्रयोग करके किसी दिए गए समस्या का समाधान करने की क्षमता विकसित हो जाने से विद्यार्थी आगे की शिक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और बच्चों में तार्किक चिंतन तथा किसी समस्या के समाधान करने की क्षमता का विकास हो जाएगा। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को कक्षा 3 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों में प्राप्त करने के लिए निपुण भारत योजना, जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा संस्कृति प्रदान की गई है, लागू किया गया है और इस पर कार्य हो रहा है। व्हाट इज FLN इन NEP 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का क्या असर है? चलिए आइए हम देखते हैं, बात करते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी refers to basic skills in reading, writing and mathematics. किसी भाषा को पढ़ने में, लिखने में, समझने में और साथ साथ गणित को भी पढ़ना, लिखना और समझना जो है अगर बच्चों में आ जाता है एक निश्चित उम्र तक, तो कहा जाएगा कि उसमें बेसिक स्किल विद रेफरेंस टू लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की समझ विकसित हो गई है। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी इसी पर बल दे रही है। फाउंडेशनल लिटरेसी encompasses the ability to understand written text, express thoughts coherently in writing and critically analyze information. विशेष रूप से फाउंडेशनल लिटरेसी जो है वो किसी टेक्स्ट को, किसी दिए गए लिखे हुए विषय वस्तु को समझ सके बच्चा, लिख सके और उसके माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सके, साथ साथ उससे संबंधित जानकारियों को तार्किक रूप से विश्लेषित कर सके। इस बात को फाउंडेशनल लिटरेसी फोकस करती है, केंद्र बिंदु में रखती है। अर्थात विद्यार्थियों में इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम पूरा करने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। फाउंडेशनल न्यूमरेसी involves proficiency in numerical concepts, mathematical operations, and the capability to apply them to real life situation. अर्थात गणितीय जो समझ है उसके लिए विद्यार्थियों में उम्र के हिसाब से, कक्षा के हिसाब से अंकों का ज्ञान, अंकों के साथ विभिन्न संक्रियाओं को यूज करना, प्रयोग करके किसी दिए गए समस्या का समाधान करना और सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करके अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने की क्षमता का विकास करना फाउंडेशनल न्यूमरेसी के अंतर्गत आता है। निपुण भारत मिशन क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा संचालित योजना है, विशेष प्रकार का मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत टू प्रमोट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन टूडेज एजुकेशन, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव दैट इज द निपुण भारत। निपुण भारत मिशन in India is also known as the National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy, launched in 2021. इसको 2021 में लॉन्च किया गया। It is a part of the National Education Policy.
विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुति के आधार पर इस मिशन को सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज फॉर एवरी चाइल्ड टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी by the end of grade 3 to be completed up to 2026 to 2027. The Nipun Bharat program was launched by the Union Minister for Education, Shri Ramesh Pokhriyal ji, on July 5th, 2021 under the National Education Policy 2020. जैसा कि आप सभी परिचित हैं, 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी आ रही है। उसमें विद्यालयी स्तर पर बहुत सारे सुझाव उन्होंने दिया हुआ है। उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए निपुण भारत कार्यक्रम को 5 जुलाई 2021 को उस समय के शिक्षा मंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, लागू किया गया है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर released a report titled The State of Foundational Literacy and Numeracy, that is the FLN, in India on 16th December 2021. नेशनल मिशन निपुण भारत विजन, आखिरकार इस निपुण भारत का विजन और मिशन क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। द विजन ऑफ द मिशन इज टू क्रिएट एन इनएबलिंग इन्वायरमेंट टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी so that by 2026 and 2027 every child achieves the desired learning competencies in reading, writing and numeracy at the end of grade 3 and not later than grade 5th. जैसा कि पिछले व्याख्यान में भी हमने बताया है कि निपुण भारत में विशेष रूप से ये प्रायोजन किया गया है कि देश का प्रत्येक विद्यार्थी 2025-26 अर्थात इस समय इसको 2026-27 तक कर दिया गया है कि कक्षा 3 तक भाषाई समझ, भाषा को पढ़ लेना, भाषा को लिख देना, उसके साथ साथ गणित के अंकों की पहचान, गणित के अंकों के साथ संक्रियाओं का प्रयोग और उनका प्रयोग करते हुए दिए गए समस्या का समाधान और इन सबको मिला करके अपने जीवन में आने वाली दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान कर लेने की क्षमता को पूरा किया जाना है, जो कि कक्षा 3 तक के कक्षा शिक्षण के उपरांत हो जाना है। परंतु किसी भी परिस्थिति में कक्षा 5 तक किसी कारणों से अगर कक्षा 3 तक इस बात की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो कक्षा 4 या कक्षा 5 तक तो प्राप्त कर लेना बहुत ही आवश्यक है। ये आपका निपुण भारत का मिशन है। एम ऑफ द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एफएलएन का उद्देश्य क्या है, कौन कौन सी बातें इसमें प्राप्त करनी है। सबसे पहला उद्देश्य है एज ए पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020 Ministry of Education, Government of India has launched Nipun Bharat Mission for Foundational Literacy and Numeracy. NEP 2020 की संस्तुति के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को दिया गया है। इसको प्राप्त करने के उपाय सुझाए गए हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी aims to ensure that children learn joyfully through play, stories, rhymes, activities, local art, craft and music, and develop strong foundations for lifelong learning. FLN में विशेष प्रकार का ये प्रायोजना है। बच्चों में खेल के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से,
राइम्स के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से, लोकल जो हमारे आर्ट हैं, क्राफ्ट हैं और म्यूजिक या गीत के माध्यम से आनंदपूर्वक बच्चों में फाउंडेशनल लेवल पर भाषाई समझ और गणितीय समझ को विकसित किया जा सके, जिससे ये विद्यार्थी भविष्य के और अधिक उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकें, एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सकें। The mission outlines learning outcomes that have been designed in a spiral and progressive manners. स्पाइरल मैनर में इन बातों को डिजाइन किया गया है फ्रॉम प्री स्कूल टू ग्रेड 3, एमिंग एट होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड लर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालयी स्तर की शिक्षा को 4 स्तरों में विभाजित करके सीखने का प्रयास किया जा रहा है। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। फाउंडेशनल स्टेज 3 साल का और प्रिपरेटरी में का 2 साल प्लस मिडिल का 1 साल मिला करके जो 6 ईयर का ब्लॉक है, 6 ईयर के भीतर बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को प्राप्त करने का सुझाव दिया गया है। 5 key components are foundational literacy and numeracy। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बहुत सारे अवयव हैं, जिसमें 5 जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला है नंबर सेंस एंड काउंटिंग। नंबर सेंस एंड काउंटिंग। नंबर सेंस एंड काउंटिंग मीन students can understand the use of numbers, sequence and count objects. It helps them to perform simple mathematical operations in future learning such as addition and subtraction। बच्चे अंकों को अच्छी प्रकार से पहचान सकें, अंकों को प्रारंभिक स्तर पर 1 अंक, 2 अंक की संख्याओं को आपस में जोड़ सकें, घटा सकें। अगला है बेसिक ऑपरेशंस। सामान्य जो संक्रिया है गणित में उनको संचालित कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं गणित की 4 संक्रियाएं होती हैं मुख्य रूप से, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, अर्थात एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। Once students understand the basic concepts of numbers, they can proceed to further steps like। जैसे ही बच्चों में अंकों की पहचान की समझ बढ़ जाती है, बच्चे उन अंकों के साथ आपस में इंटरैक्ट करने लगते हैं, अर्थात उनको गणितीय संक्रियाओं के साथ लागू करते हैं। गणितीय संक्रियाएं क्या हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, अर्थात अंकों को आपस में जोड़ना, जोड़ने के बाद क्या कुछ निकल के आता, क्या मान होता उसको प्राप्त करना, आवश्यकता के हिसाब से एक अंक को दूसरे अंक से निकालना, अर्थात घटाना आ जाए। आपस में दोनों विपरीत संक्रियाएं हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसी प्रकार से अंकों को एक अंक को दूसरे अंक से डिवाइड करना और देखना कि कितनी बार डिवीजन हो जा रहा है। उसी का रिवर्स जो हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, अर्थात 2 अंकों को आपस में गुणा करना। ये संक्रियाएं 1 डिजिट पर हो सकती हैं, 2 डिजिट पर हो सकती हैं, 3 डिजिट पर हो सकती हैं। आवश्यकता के हिसाब से बच्चों के उम्र को ध्यान में रखते हुए, कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कक्षाओं में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंकों की पहचान, आपस में उनको संक्रियाओं के माध्यम से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करने को सीखने का प्रयास किया जाता है। In this way, kids become capable of dealing with complex mathematical problems in higher grades. For example, 12 plus 5 equal to 17। अगर एक अंकों के 2 अंकों को विद्यार्थी पहचान ले रहा, जोड़ ले रहा है, निश्चित रूप से 2 अंक और 1 अंक को भी जोड़ लेगा, 2 अंक या 2 अंक को भी जोड़ लेगा और उसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता का विकास हो जाएगा। तीसरा है मेजरमेंट एंड कंपैरिजन। मेजरमेंट कैन बी लर्न्ड बाय
comparing different things based on their length, weights, and capacities of using different units. For example, calculating daily expenses is helpful to use mathematical skills in life. बच्चे जब गणित की सामान्य जानकारी को समझने लगेंगे, अंकों को पहचानना, अंकों को लिखना, अंकों को आपस में ऑपरेट करना, निश्चित रूप से उसके आगे इनका उपयोग करते हुए दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान कर लेंगे। जैसे प्रतिदिन विद्यार्थी का किसी घर का कितना खर्च हो रहा है उसको भी निकाल सकता है। प्रतिदिन के खर्चे को निकालते हुए पूरे सप्ताह में कितना खर्च हो रहा है, पूरे महीने में कितना खर्चा पा रहा है, इस बात को भी विद्यार्थी निकाल सकता है, बशर्ते प्रारंभिक तौर पर उसमें गणित के अंकों की पहचान, अंकों को लिखना, अंकों को समझना और अंकों को आपस में संक्रियाओं के माध्यम से ऑपरेट करना है। शेप्स, पैटर्न्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। अंकों पर कार्य करने के बाद विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के आकृतियों को पहचानने लगेंगे, आकृतियों के साथ तालमेल बैठाने लगेंगे, आकृतियों के अलग-अलग विशेषताओं को भी समझने लगेंगे। इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, शेप्स, पैटर्न्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अर्थात किस आकृति को कहीं रखने में कितनी जगह की आवश्यकता होगी, वह आकृति 2D में है या 3D में है, इसकी भी समझ बच्चों में आने लगती है। भाई प्ले ए की रोल where kids understand similarities, differences and relationship between objects. छोटे बच्चे विभिन्न आकृतियों में क्या करने लगते हैं, एक प्रकार की समानता देखने लगते हैं, उनमें अंतर भी कर सकते हैं, उनको छांट करके अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं और दो या दो से अधिक आकृतियों में एक संबंध भी विकसित करने देख सकते हैं। पांचवी विशेषता है प्रॉब्लम सॉल्विंग विद नंबर्स। इन सारी समझ का विकास हो जाने के बाद विद्यार्थियों में समस्याओं के समाधान करने की क्षमता विकसित होने लगती है। दैट इज इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स आर कोर। इट encourages people to improve critical thinking and logical reasoning skills also. For examples, kids learn how to share fruit to get an equal quantity for each friend. विद्यार्थियों में या बच्चों में सामान्य न्यूमरेसी और लिटरेसी की समझ बढ़ने के बाद जब वह बच्चे दैनिक जीवन में आते हैं तो उन सीखे हुए ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण के रूप में आपके सामने बताया है, बच्चे कुछ फल या कोई सामान या कोई खेल की सामग्री रखी हुई है, उनको आपस में वितरित करना है, तो फाउंडेशनल न्यूमरेसी के ज्ञान के आधार पर उनको बराबर बराबर अपने संगी साथी बच्चों में वितरित कर सकते हैं। अगर यह समझ नहीं होगी तो इनको कठिनाई होगी। इस तरीके से धीरे धीरे आगे के जीवन में भी सही निर्णय ले सकते हैं। नाउ we will discuss about importance of foundational literacy and numeracy. इस FLN का महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व आपके सामने है better learning outcomes in higher grades. कक्षा 3 तक या 5 तक हमारी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की समझ विकसित हो जाएगी तो हम आगे की कक्षाओं में अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। Implementation of foundational literacy and numeracy helps students in better learning outcomes in higher grades. अगली जो महत्व इसका है, kids who can read, write and perform basic numerical operations gain better opportunities. This ensures foundational literacy and numeracy is ideal for students lifelong learning. बच्चों की नींव अगर कमजोर हो गई तो बच्चा आगे की शिक्षा के लिए, आगे के जीवन के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए छोटे बच्चों की नींव को मजबूत रखना अर्थात उनको न्यूमरेसी और लिटरेसी का जो फाउंडेशन है
को अच्छी प्रकार से तैयार करना, सिखा के, पढ़ा के, जो कि आनंदपूर्वक खेल के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे हम उस विद्यार्थी को आगे के जीवन के लिए, आगे की शिक्षा के लिए तैयार कर सकें। अगला महत्व है एफएलएन का इम्प्रूव्ड कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। विद्यार्थी का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। विद्यार्थी एक दूसरे विद्यार्थी से, शिक्षक से, समाज से, अभिभावक से कम्युनिकेट करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। दैट इज मास्टरिंग बेसिक स्किल्स ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी improves confidence and communication skills in the students। ये भी अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण जो है इसका मेरिट है एफएलएन की। बाय शेयरिंग आइडियाज, पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशंस और डिबेट्स, इंक्रीज क्यूरियोसिटी एंड एंगेजमेंट विद टीचर्स एंड पीयर्स। बच्चों में आपस में शिक्षक के साथ क्यूरियोसिटी पैदा करके नई नई बातों को मन में विचार आ सकता है, प्रश्न को पूछ सकते हैं और साथियों से भी वो तर्क वितर्क या नए नए प्रश्नों को रख सकते हैं। ये सब कुछ जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की समझ के बाद विद्यार्थियों में विकसित होता है। तीसरा महत्व है रिड्यूस्ड ड्रॉप आउट रेट्स। अगर विद्यार्थी कम उम्र में ही छोटी कक्षाओं में विषय वस्तु से संबंधित भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान हो जाएगा तो वह आगे के शिक्षण के लिए खुशी खुशी तैयार होंगे और अपनी अगली कक्षाओं में अध्ययन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अन्यथा बच्चों में कहीं न कहीं कुंठा का भाव आ जाता है और वह आगे की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से एफएलएन अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से हम ड्रॉप आउट रेट को कम कर सकते हैं। एफएलएन इज एन इफेक्टिव अप्रोच फॉर स्टूडेंट्स who struggle to read and write. It also builds engagement and reduces dropout rates. In this way, students can plan for continuous learning and become capable of handling complex problems. चौथा महत्व है enhanced logical and cognitive development. To improve memory, reasoning and analytical thinking, foundational literacy and numeracy play a major role। एफएलएन के माध्यम से विद्यार्थियों में स्मरण क्षमता, सोचने की, चिंतन करने की क्षमता और विस्तार या विश्लेषण करने की विशेषताओं में भी अभिवृद्धि होगी। It is ideal to enhance students' learning। For example, students with foundational literacy and numeracy can easily read a story, solve a puzzle or understand everyday patterns। एफएलएन के माध्यम से बच्चों में कहानियों को, पजल को सॉल्व करने की, दिन प्रतिदिन में होने वाली चर्चाओं की, समस्याओं की पैटर्न को समझ पाएंगे। Now we will discuss about 6 effective teaching strategies to promote foundational literacy and numeracy। एफएलएन को कैसे प्रभावशाली तरीके से प्रमोट किया जाए उसकी कुछ कुछ स्ट्रेटजी होती हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण 6 स्ट्रेटजीज को हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली स्ट्रेटजी है आपके सामने प्ले बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। खेल के माध्यम से और अनुभव के माध्यम से विद्यार्थियों को सिखाना जाए। Including various play-based activities and experiential learning in students' lives increases curiosity in the early stages of education। Games like counting blocks, sorting objects by color or role playing are useful। बहुत सारे गतिविधियां हैं, इनमें शिक्षक अपनी सुविधा से, अपनी समझ के आधार पर बहुत सारे गेम का, खेल का चयन कर सकता है, जिसके माध्यम से बच्चे खेल में बहुत सारी बातों को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। दूसरी जो स्ट्रेटजी है स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग्स एंड राइम्स फॉर लिटरेसी। लिटरेसी बढ़ाने के लिए, भाषाई समझ बढ़ाने के लिए बच्चों को कहानी सुनाया जाए। कहानी से कुछ शब्दों को दोबारा उनको बोलने के लिए कहा जाए। बच्चों को कहा जाए कहानी सुनने के बाद समूह में उसी कहानी को अपने आप बताएं या अलग अलग भी बता सकते हैं। सॉन्ग से, गीतों के माध्यम से, राइम के माध्यम से हम भाषाई ज्ञान को बढ़ा सकते हैं।
through storytelling, songs, and rhymes for literacy. Teachers can help kids learn vocabulary, pronunciation, and comprehension. This improves awareness, memory power, and long-term retention. Now, third strategy is the math through games and real life examples. खेल के माध्यम से और जीवन के वास्तविक अनुभवों को उदाहरण देते हुए बच्चों में गणित की क्षमता का विकास किया जा सकता है, गणितीय ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। By including different activities and games like hopscotch for counting or identifying shapes, guide to practice and enjoy learning. बहुत तरह के खेल होते हैं और शिक्षक के रूप में आप अपने कक्षाओं में बच्चों में गणित की समझ को विकसित कर सकते हैं। यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, एप्स एंड ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। आज आईसीटी के समय में आप सभी परिचित हैं, बहुत सारे डिजिटल टूल आ गए हैं, ऐप आ गए हैं और ऑडियो विजुअल मटेरियल हैं, जिनके माध्यम से बच्चों को बहुत ही जागरूकतापूर्वक, बहुत ही आनंद के माध्यम से आप भाषाई और गणितीय ज्ञान का विकास कर सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग अप्रोचेज। लर्निंग अप्रोच का जो असेसमेंट कैसे होगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग अप्रोचेज मोटिवेट लर्नर्स to perform better and guide teachers to identify students' needs and adjust teaching methods. Formative assessment like quizzes, observations, interactive questioning, etc. are ideal ways of learning. इस प्रकार से अलग अलग हम इनको असेसमेंट कर सकते हैं, विशेष रूप से फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगली स्ट्रेटेजी है पीयर लर्निंग एंड ग्रुप एक्टिविटीज। बच्चे आपस में बहुत कुछ सीखते हैं, समूह में अच्छा कार्य कर लेते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक के रूप में इन गतिविधियों को संचालित करना चाहिए। नहीं, बच्चे भी आपस में सीखते हैं, समूह में उनको कोई कार्य देंगे तो उस कार्य को बड़े आसानी से, सरलता से, बहुत प्रसन्नता से पूरा करते हैं। नाउ बेनिफिट्स ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इस पूरे एफएलएन का जो निपुण भारत के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एनईपी 2020 के रिकमेंडेशन पर लागू किया गया, क्या क्या लाभ हैं? सबसे पहला लाभ है अर्ली डिटेक्शन ऑफ लर्निंग गैप्स, सो टाइमली सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड। प्रारंभिक उम्र में ही, प्रारंभिक कक्षाओं में ही बच्चों की कठिनाइयों का पता किया जा सकता है। कंपटेंसी बेस्ड प्रोग्रेस ट्रैकिंग दैट रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल स्किल्स, नॉट जस्ट मार्क्स। Improved teaching strategies through diagnostic and continuous assessment। शिक्षक समय समय से अपने टीचिंग स्ट्रेटजी को क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। Joyful, stress-free evaluation using play-based and activity-based methods का भी प्रयोग किया जा सकता है। और better monitoring of student learning to stronger foundational skills। आगे के फाउंडेशन के लिए, आगे की स्किल को विकसित करने के लिए हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, विद्यार्थियों में किस स्तर की, किस गति से अधिगम हो रहा है, जिससे और अच्छा से अच्छा परिणाम प्राप्त किया जा सके। इसी के साथ साथ एफएलएन की कुछ कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, इनको लागू करना, इनको असेस करना, एक एक कर हम आपके सामने चर्चा करेंगे। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टूल्स across schools and states as well as national level। एक मानक जो है असेसमेंट टूल की अभी भी कमी है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को असेस कर सकें या अलग अलग लिटरेसी और न्यूमरेसी को हम असेस कर सकें। इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। कहीं न कहीं हमारी जो ट्रेनिंग है इसमें भी सुधार की गुंजाइश है, भी एक अपने आप में कठिनाई है। पर्याप्त प्रशिक्षण जो है फेस टू फेस में नहीं दिया जा पा रहा है। सरकार प्रयास कर रही है कि ऑनलाइन माध्यम से अधिक शिक्षक को उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जा सके। अगला चैलेंज है लार्ज क्लास साइजेज मेक इंडिविजुअल असेसमेंट डिफिकल्ट। हमारी कक्षाएं जो हैं उसमें विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, इसलिए उनको डील करना, उनको एफएलएन के लिए तैयार करना एक कठिनाई का अनुभव होता है।
limited resources and materials for age appropriate FLN evaluation. हमारा रिसोर्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में भी कहीं ना कहीं क्राइसिस है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैलेंज है। और लास्ट चैलेंज है डेटा ट्रैकिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इशूज इन कंटिन्यूअस असेसमेंट सिस्टम। विद्यार्थियों के अधिगम और असेसमेंट से संबंधित जितने आंकड़े हैं उनको एकत्रित करना, ट्रैक करना और आगे के लिए उस पर एक रणनीति बनाना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज के रूप में हमारे विद्यालयों में देखा जाता है। संक्षेप में आज के पूरे व्याख्यान को देखें। निपुण भारत इज ए नेशनल मिशन टू इंश्योर ऑल चिल्ड्रेन अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। कक्षा 3 तक हमें निपुण भारत के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को FLN के माध्यम से तैयार करना। इट फोकसेज ऑन इनेबलिंग चिल्ड्रेन टू रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, डेवलप नंबर सेंस and gain basic mathematical skills essential for future learning. The mission promotes joyful, activity-based learning, continuous assessment, and strong teacher support. By addressing early learning gaps and improving classroom processes, Nipun Bharat aims to build a strong foundation for every child's educational journey. आज मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विद्यालय स्तर पे एक प्रमुख सुझाव जिसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि कक्षा 3 तक विद्यार्थियों को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से भाषाई और गणितीय ज्ञान को से भली भांति परिचित करा दिया जाए। इस पर विस्तार से चर्चा किया। आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप FLN अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से भली भांति परिचित हो सके होंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।